Today we are starting with Maths Chapter 5, Continuity and Differentiability. So in this chapter, the first topic which we are going to study is continuity, then differentiability, then Rolle's and Lagrange's theorems, and then some advanced differentiation or derivatives, and then the application of derivatives. That's the next chapter. Okay, but first we must understand whether a given function is differentiable or not. And the first step in understanding whether a given function is differentiable or not is to find out whether wherever we have to find that the function is differentiable or not, at that point we must find that whether the function is continuous or not. Okay, so we will use the concept of theory of limits for understanding continuity of a function. Okay, this is a very you can say simple concept, but could be taken to you can say extreme or complex levels with the help of some examples. Other than that, if you want to just understand the concept, it is very easy. ठीक है, so let's start with continuity. क्या है ये continuity देखते हैं. In case of the limit of the function f at a point c, the value of the function at this point, that is f of c, was not taken into the account. तुम्हें याद है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट सी, इसका क्या हम लोग मीनिंग या फिर डेफिनेशन पढ़ते थे लिमिट्स में लास्ट ईयर. हमने क्या पढ़ा था? limit of a function f of x as x approaches c. क्या करता था x की जगह डायरेक्टली हम c डालते थे? नहीं, x को c की तरफ अप्रोच करवाते थे. we used to make x approach c. ठीक है, and then we used to find the value of this function f of x at c as the value of x approaches c. तो ये जो एरो है उसका मीनिंग याद है तुमको? इसका मीनिंग है अप्रोचेस. ठीक है, तो कंटिन्यूटी में भी ऐसे ही हम अप्रोच करेंगे. किसी भी फंक्शन f of x को उसकी वैल्यू x की वैल्यू c के लिए हम अप्रोच करेंगे, लेकिन देर आर टू वेज ऑफ अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन x is equal to c. That is from left hand side, which is known as left continuity, and from right hand side, which is known as right continuity. ठीक है, so we are going to do three things. Actually, two of them I just discussed, that we are going to approach a function from left hand side, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, limit of a function f of x as x approaches c minus means you are approaching x at values from values which are smaller than x. ठीक है, which is equal to f of c. ठीक है, अगर limit of a function f of x when you are approaching x from a number which is smaller than x, इसलिए हमने c माइनस लिखा है. अगर उसकी वैल्यू f of c से इक्वल है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन. इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अच्छा, राइट कंटिन्यूअस क्या है? यू आर गोइंग टू अप्रोच द फंक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट इज अ नंबर c which is greater than x. Here the number c was smaller than x and you are approaching the function from left hand side. ठीक है, इसलिए x approaches c minus, ऐसा हमने लिखा है. सो बेसिकली अप्रोच किसको करना है? अप्रोच हमें एक नंबर c को करना है. ठीक है, लेकिन c माइनस का क्या मतलब है? c से जो छोटे नंबर्स हैं,
C से जो छोटे नंबर्स है, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ C, वहां से तुम उसको अप्रोच कर रहे हो. Now this might sound very tricky and very you can say um, abstract, because it does not have a picture, very clear picture in front of you, but just very soon after this I'm going to show you a graph which will give you a clear picture of the situation. तो सिचुएशन क्या है, हम एक फंक्शन को फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है सी पे, लेकिन हम सी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं डाल रहे, हम सी से छोटे नंबर की वैल्यू डाल रहे हैं. And then we are approaching the value of that function at C, and we are seeing that where is it reaching. Is it reaching f of C? Is it equal to f of C? Then that function is continuous at from left hand side, you can say. अच्छा, right hand continuity या right continuity क्या होती है? So what you are going to do here is you are going to approach the function from you are going to approach the value of the function at C from the numbers which are greater than C. इसको ऐसे लिखते हैं, limit of f of x when x approaches C plus. C plus मतलब you are approaching C from the right hand side. That is, you are approaching C from all the numbers which are greater than C. And then too, if the value of this function becomes equal to f of C, then this function is said to be right continuous function. तो फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एट अ पॉइंट. ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं एट अ पॉइंट. वो पॉइंट कौन सा है? C. ठीक है, और वो C पे उसकी कंटिन्यूटी लेफ्ट साइड से भी होनी चाहिए, राइट साइड से भी होनी चाहिए, और एट अ पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे भी, मतलब x की जगह हम वही पॉइंट की वैल्यू C को ही डाल दें अगर, तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए. सो बेसिकली कंटिन्यूटी, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है? अ फंक्शन इज सेड, नोट ले सकते हो तुम, फंक्शन इज सेड टू बी continuous at x is equal to C when limit as x approaches C minus of f of x, when limit of f of x when x approaches C minus, that is left hand limit exists, comma, limit of f of x when x approaches C plus, that is right hand limit exists, and both. अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं. इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ऑफ सी से इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी एफ ऑफ सी से इक्वल होना चाहिए. ठीक है, should exist and should be equal to f of c, and limit when x approaches c of f of x should be equal to f of c. मतलब कंटिन्यूटी एट पॉइंट भी होना चाहिए. ठीक है, एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस कहलाता है? एक पॉइंट C पे, जब वो पॉइंट C को तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तभी भी तुम्हें f ऑफ C मिलेगा, राइट साइड से अप्रोच करो तभी भी तुम्हें f ऑफ C मिलेगा, और उस पॉइंट C की वैल्यू डायरेक्टली x की जगह डाल दो तभी भी तुम्हें f ऑफ C मिलेगा. अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन दिखता कैसे है? ठीक है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो, ये है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल. अब यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल मतलब 0 पे तुम एक हॉलो सर्कल देख रहे हो और 1 पे, ये 1 है. ठीक है, 1 पे भी तुम हॉलो सर्कल देख रहे हो, मतलब 0 और 1 पे ये जो फंक्शन है
ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी डोमेन ले लो, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। सो द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन दिस ओपन इंटरवल। और फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ओपन इंटरवल में ही होता है कंटिन्यूअस। ये देखो यहाँ पे 0 और 1 पे दोनों पे डार्क सर्कल और बीच की लाइन भी डार्क है। इसका मतलब है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, एट 1 एंड एनीवेयर बिटवीन 0 एंड 1। एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू अगर डालोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का आंसर एक मिलेगा तुम्हें। इसका मतलब है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द एंड पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये है क्लोज्ड इंटरवल कंटिन्यूटी। पहले हमने ओपन इंटरवल कंटिन्यूटी देखी, अब ये क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का धीरे धीरे यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, इसकी जो टेक्निकलिटीज है, जैसे यहाँ पे वो लोग ने, तुम सोच रहे होंगे, ये सम स्टूडेंट्स माइट हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि ये क्या लिखा है, ये व्हाट इज दिस सी माइनस डेल्टा कॉमा सी। यहाँ पे सी माइनस डेल्टा पे ओपन इंटरवल है और सी पे क्लोज इंटरवल है, इसका क्या मीनिंग है? अब इसका मीनिंग अगर तुम ये डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन, थियोरेटिकल डेफिनेशन, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, ये पढ़ोगे, थोड़ा सा समझोगे इसको, तब तुम्हें वो क्लिक होगा। डायरेक्टली हम डेफिनेशन से शुरू नहीं करते बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन। सो अब तुम्हें वो ब्रीफ डेफिनेशन मिल गई है कि हमें किसी भी फंक्शन को अप्रोच करना है एट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, और उसको किसी भी तरफ से तुम अप्रोच करो, या फिर उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी, उसकी उसकी लिमिट की वैल्यू ढूंढो, तो वो उसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीनों केस में उसकी जो लिमिट है वो सेम होनी चाहिए, वो फंक्शन की जो रेंज है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑन अप्रोचिंग a function from left hand side, from right hand side, and at that particular point it should give out the same value, then only it is said to be continuous। ये उसका जो मैंने मीनिंग है ये अपने वर्ड्स में बताया, लेकिन उसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? A function f is said to be left continuous or continuous from the left at x is equal to c if f is defined in, अच्छा f को डिफाइंड कर रहे हैं हम लोग, किस में डिफाइंड कर रहे हैं? इन दिस इंटरवल। क्या है ये इंटरवल? c माइनस डेल्टा कॉमा सी। तो f को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इन द इंटरवल c माइनस डेल्टा कॉमा सी। अच्छा, c इज इंक्लूडेड, c इज इंक्लूडेड, हम लोग कंटिन्यूटी c पे ही ढूंढ रहे हैं, तो c तो इंक्लूड रखना ही पड़ेगा हमें। मतलब f ऑफ x में x की जगह हम c डालेंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए। अच्छा, c माइनस डेल्टा, c माइनस डेल्टा मतलब ये जो तुम्हारा नंबर है ना c, उसमें से कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर को माइनस करो। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। अगर तुम ये पॉजिटिव रियल नंबर को माइनस करते हो c में से, तो क्या मिलेगा तुम्हें? c से छोटा नंबर मिलेगा, c से लेफ्ट साइड वाला नंबर मिलेगा। तो ये c से छोटे नंबर, कोई भी छोटा नंबर ले लो, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से c तक कोई भी नंबर तुम c की जगह डालो एंड अप्रोच करो तुम इस फंक्शन को टूवर्ड्स c। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? तुम्हें मिलना चाहिए f ऑफ c। दैट इज वेरी ब्रीफली explained in this particular expression, limit of function f of x as x approaches c minus is equal to f of c। ठीक है, ओके, सो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट कंटिन्यूटी। ये समझ में आया तुमको? ये तुम्हारा इंटरवल है। इंटरवल किसका इंटरवल है? ये डोमेन का। डोमेन कैसी है? c से छोटी है। c से छोटी डोमेन मतलब तुम लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है x सच दैट x is greater than c minus delta and
इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी, मतलब x की कोई भी वैल्यू, डोमेन की कोई भी वैल्यू ले लो, जो तुम्हारा जो पॉइंट है जिस पे तुम कंटिन्यूटी ढूंढ रहे हो उससे छोटी वैल्यू है या उससे इक्वल है, उस वैल्यू पे अगर ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है मतलब वो लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है। और राइट कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या है, हमने क्या लिया, ओपन इंटरवल सी, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल सी टू सी प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, मतलब x की वैल्यू c या c से बड़ी होगी अप टू c प्लस डेल्टा, जहां पे डेल्टा कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो मतलब c की वैल्यू में कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो c से बड़ा नंबर मिलेगा, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो c से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, c से बड़े नंबर तक कोई भी x की वैल्यू तुम डोमेन में ले लो और उसको अपने फंक्शन में डालो, तो तुम्हें जो फंक्शन का आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, f of c, which is equal to such that when put the value of x as that point at which you are checking the continuity, that is c, तो वो उससे इक्वल आना चाहिए। अगर वो इससे इक्वल आया तो मतलब वो राइट कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन राइट कंटिन्यूअस भी है। पहले हमने लेफ्ट लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक किया, अभी राइट कंटिन्यूटी चेक किया, अब हम करेंगे चेक कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब हम लेफ्ट से या राइट से अप्रोच नहीं करेंगे फंक्शन, अब सीधा x की जगह c डाल देंगे, और x की जगह c डालने से हमें क्या आता है, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस c इज इक्वल टू f ऑफ c आता है, मतलब इट इज कंटिन्यूअस एट c। ठीक है, सो फंक्शन f should be right continuous, should be left continuous and should be continuous at that point, only then that particular function is said to be continuous at a given point। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि कंटिन्यूटी एक इंटरवल में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं whether a given function is continuous in a particular interval or not। ठीक है, अब इंटरवल में जब कंटिन्यूटी पता लगाते हैं हम लोग, तो वी हैव टू फर्स्ट मेक श्योर दैट वेदर इट इज एन ओपन इंटरवल और इट इज अ क्लोज्ड इंटरवल। इफ इट इज एन ओपन इंटरवल द कंटिन्यूटी will not be valid at the end points of that interval because those points are not included in our domain, but if it is a closed interval then the continuity will be applicable at the end points also। मतलब यहाँ पे तुम 0 और 1 भी x की जगह डाल के कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, डोमेन। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन की अब इजी डेफिनेशन क्या होगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। मतलब तुम वो फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू डालो, उसकी डोमेन की x की कोई भी वैल्यू डालो तो तुम्हें रेंज मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू किसी भी डोमेन पे एग्जिस्ट कर सकती है, इसके लिए वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। Domain of continuity, the set of all points where the function is continuous is called domain of continuity। जहां पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसे सारे डोमेन के पॉइंट्स को कंटिन्यूटी का डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तब होगा जब ये तीनों चीज जो मैंने तुम्हें बताई इसमें से एक चीज वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, या तो फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब limit of f of x when x approaches c minus from the left hand side will not be equal to f of c, अगर ऐसा आया, या फिर will not be equal to f of c when x approaches c plus from the right hand side, ऐसा कुछ आया, या फिर उस पॉइंट पे ही लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ आया, तो तीनों में से एक चीज अगर हुआ या एक से ज्यादा चीज हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, a function f is said to be discontinuous at a point if it fails to be continuous there। ठीक है, अगर x is equal to c पे ही वो कंटिन्यूअस ना हो, जैसे लिमिट ऑफ f of x at x approaches c तो एग्जिस्ट करता है बट इट इज नॉट इक्वल टू f of c, तभी भी वो डिसकंटिन्यूअस है। या तो फिर लिमिट ऑफ f of x as x approaches c एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तभी भी वो डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, ये लिमिट ऑफ f of x when x approaches c एग्जिस्ट कब नहीं करेगा,
जब या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, मतलब तुम एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू जब ढूंढ रहे हो, तो वो फंक्शन की वैल्यू जो है, when you approach the function from left side and the right side, you are getting two different values. That means that particular function is not continuous. Yeah, that particular function is not continuous. या फिर तुम उस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ओनली, तो वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बाय अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड रिस्पेक्टिवली, उसका कोई वैल्यू, उसकी कोई रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखना what is happening. Consider the function f of x is equal to 1 if x is smaller than 0 and f of x is equal to 3 minus x if x is greater than equal to 0, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, वो 0 पे करनी है। तो ऐसा कैसे पता चला मुझे? देखो हमेशा किसी भी फंक्शन का जब तुम्हें डेफिनेशन देंगे ऐसे, तो वो फंक्शन का डेफिनेशन कुछ पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है ऐसा तुम्हें लगेगा। कंटिन्यूटी में जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एज वी कैन सी कि 0 पे ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मतलब जो सस्पेक्टेबल नंबर है, जिसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम डाउट कर सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी का जो झोल है वो 0 पे है, इसकी कंटिन्यूटी में जो लफड़ा है वो 0 पे है, राइट। तो अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि 0 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? तो हम बेसिकली 0 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से मतलब 0 से छोटे नंबर के लिए 0 से छोटे नंबर की वैल्यूज हम डालेंगे ये फंक्शन में। तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालो, x स्मॉलर देन 0 जब डालते हो तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या अक्वायर करती है? 1। So that means the limit of function when x approaches 0 minus, that is from the left side, the function acquires the value 1। मतलब क्या है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अच्छा, अब हम ये फंक्शन को राइट साइड से मतलब 0 से बड़े नंबर से अप्रोच करेंगे। जब भी ये फंक्शन को 0 से बड़े नंबर से अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? ये फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो बेसिकली हम एच मेथड यूज करेंगे। एच मेथड क्या है? एच मेथड हमने 11th स्टैंडर्ड में यूज की है लिमिट्स को सिंप्लीफाई करने के, ठीक है। लिमिट्स को एच मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? सो व्हाट यू डू इज whenever you've got your limit in terms of x, you write अच्छा, यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो x है वो इस पॉइंट को 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से? यहाँ पे राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो x की जगह तुम लिखोगे 0 प्लस एच, और x टेंड्स टू 0 प्लस को h टेंड्स टू 0 बना दोगे, ठीक है। 0 प्लस h क्यों लिखा है यहाँ पे x की जगह? क्योंकि हमारा जो लिमिट है, हमारा जो x का वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो वी आर बेसिकली फाइंडिंग द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो 3 माइनस 0 प्लस h, या दैट इज 3 माइनस h, ठीक है। सो लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 ऑफ 3 माइनस एच। तो अगर h 0 बनने वाला है तो बना दो ना 0 h को, तो क्या बनेगा, मिलेगा तुम्हें 3 माइनस 0 विच इज 3। तो जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो राइट हैंड लिमिट हमें कितनी आती है? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 3। अच्छा, मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूटी किस पे ढूंढनी है हमें? 0 पे। डेफिनेटली कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन, it is not a continuous function, but one more thing we have to find,
We have to find the value of the function at this point where we are finding the discontinuity or where we are checking for the continuity. ठीक है, that is at 0. जब x की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा? See, whenever x is greater than or equal to 0, the value of the function becomes 3 minus x. So f of 0 is equal to 3 minus x, which is 3 minus 0, which is 3. So the value of function at the point 0 is 3. लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट 3 आया और f ऑफ 0 कितना आया? 3. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और sorry, right hand limit or the value of a function at the point at which we are finding the continuity, they both are equal, but the left hand limit and right hand limit are not equal. For a function to be continuous, it should be left hand continuous, it should be right hand continuous, and it should be continuous at that point at which we are finding continuity. तो यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है. इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं. ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस ही नहीं है. ठीक है, समझ में आया? देखो अभी कंटिन्यूस क्यों नहीं है इसको ग्राफ से भी समझो. क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो एक होल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. यू सी द होल हियर. ये होल का मीनिंग क्या है? जब x की वैल्यू में 0 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? 3. जब x की वैल्यू में 1 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? y की वैल्यू मुझे मिलती है 2. जब x की जगह 2 डालता हूं तो y की वैल्यू मिलती है मुझे 1. जब x की जगह 3 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? 0. ठीक है, अब यहाँ पे ये व्हाट इज दिस? x की जगह जब मैं 0 डालता हूँ तब क्या होता है? जब x की जगह 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? 3. और x की जगह 0 से छोटा नंबर डाला तो y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? ओह यस, यस, दैट इज द केस, दैट इज द केस. 0 से छोटे नंबर के लिए y की वैल्यू मिलती है मुझे 1. कोई भी छोटा नंबर ले लो. सो दैट इज द थिंग विच दे आर शोइंग दिस बाय दिस स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है? दैट इज फॉर दिस डेफिनेशन. x की कोई भी वैल्यू 0 से छोटी लो तो तुम्हें 1 ही वैल्यू मिलेगी. मतलब 0 पे एक डिसकंटिन्यूटी है. एक्चुअली x की वैल्यू 0 से छोटी भी लो तुम तो तुम्हें आंसर 3 से ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर कहाँ से आगे बढ़ रहा है? 1 से. मतलब 3 और 1 में ये दिख रही है. दिस इज द डिसकंटिन्यूटी. अगर तुमको नहीं समझा है तो मैं एक अलग से एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. सो बेसिकली एक फंक्शन ऐसा है. अब तुम देख रहे हो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग? ये फंक्शन का कर्व है और ये कर्व ये दो जगह पे, मतलब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दो रेंज दिखा रहा है. एक ही डोमेन जिसकी दो रेंज. हो सकता है कभी ऐसा. ये तभी होता है जब फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी होती है. तो यहाँ पे तो ये फंक्शन मतलब एट f of x is equal to x, मतलब f of x at x, the function does not behave as a function, and if you draw its graph you will find a huge discontinuity. तो जब भी ग्राफ फंक्शन का ऐसा दिखता है जहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी होती है, इसका मतलब है कि एट x द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है तुम्हें. ये एक x की वैल्यू है. ये x की वैल्यू के लिए y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती. यहाँ पे एक होल है. So when there is a hole in the function, that means that the function is discontinuous over there.
तो ये जो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ये जो मैंने दिखा है, ये जो होल दिखा है, दैट मीन्स ये जो पॉट होल या फिर ये जो ब्रोकन रोड्स ये होते हैं, यहाँ से तुम्हारी गाड़ी स्मूथ नहीं चल सकती। पॉट होल से तुम्हें बच के जाना पड़ेगा। पॉट होल की जगह बहुत बड़ा खड्डा आ गया तो तुम अटक गए वहां पे। आगे अगर रोड ही टूट गया, ब्रिज टूट गया, तुम आगे कैसे बढ़ो? सो दीज आर ऑल डिसकंटिन्यूटी। जो तुम रियल लाइफ में डिसकंटिन्यूटी जो वर्ड यूज करते हो, ठीक है, वही है ये। So in your normal regular life, the year 2020 is acting as a discontinuity, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो स्मूथ लाइफ था उसको पूरा उसने डिसरप्ट कर दिया, खराब कर दिया। तो 2020 इज अ ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना? बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे ईयर में। ओके, no modification in the value of the function at x is equal to 0 can make it continuous। ये की पॉइंट वो लोग ने बताया। तुम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 0, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते, वो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा हमेशा। और एक फंक्शन हम कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एट x greater than 0 and f of x is equal to x for x smaller than equal to 0। मतलब x की वैल्यू जब 0 है, सॉरी, हाँ, x की वैल्यू जब 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू x हो जाती है, ठीक है। बट x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/x, ठीक है। तो x क्या है? x तुम्हारा डोमेन। ये डोमेन में जब जब तुम f ऑफ x की जगह 0 डालोगे, मतलब जब तुम्हारा डोमेन 0 होगा या 0 से छोटा होगा, तो हमेशा तुम्हें x मिलेगा। x मतलब क्या? वही डोमेन मिलेगा एज अ आंसर, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा डोमेन 0 से बड़ा है, अब जितना बड़ा होने लगेगा ये वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, मतलब 1/x, मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन बन जाएगा। ये फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन विल बिहेव एज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। तुम्हें पता है रेसिप्रोकल फंक्शन अप टू 1, up to the domain 1 has a great value, has a very large value, and over here there is an asymptote, it will never meet the y-axis. But for all the values of x which are very large, for all the values of x which are very large, the domain will have a very large value, but the range will have a very small value। रेंज मतलब क्या? 1/x। जितना बड़ा x की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होगा। और यहाँ पे ये एसिम्प्टोट हो जाएगा, मतलब इट विल टेंड टू मीट द x एक्सिस एट इंफिनिटी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट एट x इज इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 0? एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू तुम 0 ले रहे हो और f ऑफ x x ही हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। बट फॉर एनी वैल्यूज स्मॉलर देन 0 दैट फंक्शंस वैल्यू will become that particular number, so it will lie along this x axis, it will lie along this x axis। now let's talk about continuity। first we'll approach f of x from the right hand side, that is all, see, acha, wait, where are we finding the continuity? हम लोग कंटिन्यूटी ढूंढ कहाँ रहे? तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कंटिन्यूटी ढूंढने के लिए फिगर आउट वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन चेंजिंग। या तो तुम्हें क्वेश्चन में बताएंगे कि फाइंड द कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट, या फिर अगर तुम्हें सिर्फ पता लगाना है whether the given function is continuous or not, you should actually target the point
at which the function is changing its definition. यहाँ पे function अपनी definition 0 पे change कर रहा है, तो we'll find the continuity at 0. ठीक है, तो सबसे x is greater than 0, तो हम लोग x को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव साइड से. ठीक है, जब x को अप्रोच करते हैं हम लोग पॉजिटिव साइड से, सॉरी जब हम 0 को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव साइड से, f of x is equal to 0 which is equal to f of 0 आता है. But the limit f of x when x approaches 0 plus does not exist. क्यों does not exist? क्योंकि जब हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे माइंड में तो ये डेफिनेशन क्या है 1/x, और x की वैल्यू क्या है जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, वो है 0. 1/0 होता है, एग्जिस्ट करता है कभी? नहीं करता. तो मतलब when you approach your function from the right hand side, when x approaches 0 plus, ठीक है, the function does not have any value at x is equal to 0. ठीक है, because we are approaching 0 and the value of the function from right hand side is 1/x. So f of x does not exist. That means right hand limit does not exist. ठीक है, ये तो नंबर 1 आ गया. तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. अच्छा, अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट को ट्राई करो. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब अगर तुम अप्रोच करोगे, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं सिर्फ तुम्हें आगे बता रहा हूं. व्हेन यू अप्रोच द फंक्शन f of x from left hand side, from all the values of x which are smaller than 0, ठीक है, the value of the function becomes x. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी? x. राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 0. ठीक है, अब ये जो x है that is smaller than equal to 0, but it could be any number. It is smaller than equal to 0 only when x is 0. Okay, but it could be any number smaller than 0. So is 0 equal to a number smaller than 0? No. So the left hand limit is not equal to right hand limit. अगर यही आ जाता है, ये पहला ही पॉइंट प्रूव कर देते हो तुम, तो इसका मतलब क्या है? the function is discontinuous at x is equal to 0. What about f of x at x is equal to 0? उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? So limit when x approaches 0 of f of x, I'm sorry, कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हमें पता है कि when x is smaller than equal to 0, the value of function becomes x which is 0. ठीक है, so मतलब LHL और the value of the function at the point 0 दोनों सेम है, लेकिन RHL सेम नहीं है क्योंकि वो 1/0 आता है. ठीक है, so ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे. तो डिसकंटिन्यूटी के टाइप समझो. डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल भी हो सकती है. ठीक है, sometimes a function is not defined at c, or f of c is defined in such a way that limit of f of x at x when x approaches c is not equal to f of c. Then this discontinuity at c can be removed by defining c in such a way that limit of f of x when x approaches c is equal to f of c. Such a continuity is called removable discontinuity. इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे. डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड. देखो, जब तुम एक फंक्शन को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ये दोनों लिमिट्स, व्हेन लिमिट ऑफ अ फंक्शन f of x when x approaches c minus and c plus both exists finitely but they are not equal to each other. That is the first kind of discontinuity at point c. Second kind of discontinuity क्या होती है? जब either limit of f of x when x approaches c minus or limit of f of x when x approaches c plus does not exist. दोनों में से एक exist ही नहीं करता है, तो that is the discontinuity of the second kind. ठीक है, algebra of continuous function.
ना इसमें सिर्फ हम लोग प्रूफ देखेंगे, थियरम पे हम नहीं जाएंगे। प्रूफ का एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। सो हमारे पास दो फंक्शन है, रियल वैल्यूड है और कंटिन्यूस फंक्शंस है, एफ और जी। एफ एंड जी बोथ आर रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस defined in the neighborhood of a point C. What do you mean by neighborhood of the point C? That is when you approach point C from the left hand side and the right hand side, that is the neighborhood. ठीक है, when you approach a function f or g from the left hand side or right hand side of point C, these two functions are continuous and real valued. Then we can say that alpha times f is also continuous at C for all alpha belonging to real number. मतलब ये फंक्शन को तुम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, तभी भी जो आउटकम होगा, जो नया फंक्शन हमें मिलेगा, वो भी कंटिन्यूस होगा एट सी फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अच्छा, अगर f और g ये दोनों रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है एट पॉइंट सी, तो f प्लस जी और f माइनस जी उनका जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन है वो भी कंटिन्यूस होगा सी पे। अच्छा, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा सी पे अगर f और g दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूस फंक्शन है सी पे, और f बाय g भी कंटिन्यूस होगा सी पे प्रोवाइडेड दैट g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चार प्रॉपर्टीज है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की, जिसको हमें याद रखना है। इसके प्रूफ पे हम नहीं जा रहे, ठीक है। एक चीज नोट कर लेना, अगर हमें पता है कि f और g दोनों अलग अलग से कंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूस है, तो f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट सी। बट अगर f प्लस जी कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी, तो इट डज नॉट मीन कि f और g सेपरेटली दोनों एट सी कंटिन्यूस होंगे। एंड सिमिलरली इज द केस विद f माइनस जी, एफ जी एंड f बाई जी। अगर f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी और f बाई जी ये सारे कंटिन्यूस फंक्शंस है C पे, इट डज नॉट मीन कि दोनों f और g भी कंटिन्यूस होंगे C पे। वी डोंट नो। पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है इन इट्स डोमेन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। नेक्स्ट थियरम, रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। रैशनल फंक्शन अपने हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट, f और g अगर रियल वैल्यूड फंक्शन, तो f o g भी डिफाइंड होगा। लेट्स अज्यूम दैट f o g डिफाइंड होगा। if g is continuous at point c and if f is continuous at g of c, then f o g is continuous at c। एफ ओ जी का कंटिन्यूटी के बारे में बात किया है। एफ ओ जी तुमने फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो एफ और जी को उसके लिए रियल वैल्यूड फंक्शन होना पड़ेगा, जी को पॉइंट सी पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा, और एफ को जी ऑफ सी पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा, तो ही एफ ओ जी सी पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन will be continuous at each point in its domain। ठीक है, the sine function is also continuous at each point in its domain। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, हमने इसके ग्राफ भी देखे। tan of x is continuous at each point in its domain। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है? an absolute function of f is denoted as mod of f। mod of f मतलब f inside vertical lines। तो इसका डेफिनेशन क्या है? mod of f of x is equal to mod of f of x। mod of f of x is equal to mod of f of x for all x belonging to the domain of f। ठीक है, if f is continuous at c, अगर f c पे कंटिन्यूस है, देन mod of f is also continuous at c। ये तुम्हारी थियरम है। ठीक है, अगर f c पे कंटिन्यूस है तो उसका एब्सोल्यूट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। द कन्वर्स ऑफ द थियरम मे नॉट होल्ड, मतलब अगर mod of f कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि f कंटिन्यूस ही होगा।
अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू 2 हो जाती है जब x रैशनल है, और उसकी वैल्यू -1 हो जाती है जब x इर्रेशनल है। यहाँ पे f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, हियर f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर मतलब जैसे ही x की वैल्यू तुमने चेंज की रैशनल से इर्रेशनल में, देखो रैशनल और इर्रेशनल ये दोनों रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन तुम जैसे ही तुम्हारे नंबर लाइन पे चलते हो, तो नंबर लाइन पे, लेट मी शो यू नंबर लाइन पे यू कैन फाइंड 0, यू कैन फाइंड 1, यू कैन फाइंड 2, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड हियर इन बिटवीन रूट 2। मतलब जैसे ही तुम 0 और 1 के बीच में आगे जा रहे हो, मिलियंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आएंगे। तो ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 -1 2 -1 2 -1 कुछ भी होती रहेगी। अब सपोज तुम 1 से 2 की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ पे वैल्यू सारे रैशनल नंबर्स के लिए 2 है फंक्शन की वैल्यू। जैसे ही तुम यहाँ पे आते हो, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मतलब फंक्शन की वैल्यू √2 पे चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि √2 इरेशनल है। अब मैंने तो सिर्फ √2 लिया है, 1 और 2 के बीच में थाउजेंड्स ऑफ इरेशनल नंबर्स है, और थाउजेंड्स ऑफ रैशनल नंबर्स भी है। मतलब हर पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। चेंज होती रहेगी मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल नहीं होगी। कभी वो -1 होगी, कभी वो 2 होगी, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर तुम मॉड ऑफ एफ देखो, मॉड ऑफ एफ, तो वो कंटिन्यूअस होगा हमेशा। मॉड ऑफ एफ क्या है? मॉड ऑफ एफ है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर होगा या रैशनल नंबर। हाँ, अगर x हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई, बट हमने ओरली इसको डिस्कस किया है, वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे दो ग्राफ दिखाए हैं, सो इनको देख के बता सकते हो कि कौन सा कंटिन्यूस फंक्शन है और कौन सा नहीं। इट्स सो सिंपल, राइट। ये क्वेश्चन ही एब्सर्ड है। ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो राइट वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम ये ग्राफ को देखोगे, कोई भी बीच में होल है, कोई डिसकंटिन्यूटी है, कोई ब्रेक है, कोई बम्प है, कुछ नहीं। हाँ, ये जो मैंने अभी किया तो मेरे हाथ से ये ब्रेक हो गया, बट कोई बात नहीं। अगर तुम इसको एज अ होल देखोगे तो ये ग्राफ स्मूथ कर्व है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ ऐसा जब स्मूथ कर्व होता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है तुम x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी डोमेन ले लो, ठीक है, और वो डोमेन के साथ अगर तुम हमारे ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो बेसिकली तुम्हें क्या मिलता है? यू विल फाइंड अ रिस्पेक्टिव रेंज। तुम्हें क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी। हर पॉइंट के लिए रेंज एग्जिस्ट करती है। तो जब हर पॉइंट के लिए रेंज एग्जिस्ट करती है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो आगे हम इस पे और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी, ठीक है। सो दैट इज अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन? कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है? ऑफकोर्स ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है? So this function is discontinuous at x is equal to -4। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर x, ये फंक्शन में x की जगह -4 डाला तो यू विल गेट -3, एंड हियर यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। मतलब -4 से बड़ी वैल्यूज डालोगे तो ये फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी डायरेक्ट 3 से किस पे जंप करेगी? 2 पे, -2 पे आ जाएगी। आ गई डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ को देख के तुरंत समझ में आता है। और कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन की तुम्हें दिख रही है?
सो -4 के बाद डायरेक्टली जो डिसकंटिन्यूटी वो मुझे दिख रही है दैट इज 2 पे दिख रही है. So x is equal to 2 पे again this function becomes discontinuous. When x is equal to 2 the value of the function is -1, but when x is just greater than 2 the value of the function becomes 5. Can you see that? So इतना बड़ा jump आया -1 से 5 में अचानक से, and there is no graph in between, so definitely there is a discontinuity. And it is discontinuous at one more point, which is x is equal to 4. At x is equal to 4 there is a small hole in the function, in the graph of the function. What do you mean by the hole? होल का मतलब है कि ये फंक्शन के डेफिनेशन में जब तुम x की जगह 4 डालते हो तो तुम्हें कोई आंसर ही नहीं मिलता. हाँ, x इज इक्वल टू 4 से छोटा नंबर कोई डालोगे, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, वो एग्जिस्ट करती है, और राइट हैंड कंटिन्यूटी वो भी एग्जिस्ट करती है. लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे, मतलब एट दैट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 4 एग्जिस्ट नहीं करती है. कंटिन्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट. मतलब ये जो तुम्हारे सामने ग्राफ है यहाँ पे 3 डिसकंटिन्यूटीज है. ठीक है, तो हमें ग्राफ से ज़्यादा डील नहीं करना है, ऑल्दो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ से ही हमें समझ में आता है, बट वी डोंट हैव टू एज सच involve graphs, but on the contrary we have to deal with some equations. ठीक है, some limits. चलो, तो हम लोग कंटिन्यूटी ढूंढने वाले हैं. कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या मांगा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. नाउ सी वी हैव टू we have been given that this function is continuous at x is equal to 0, and for what value of k will this function be continuous at x is equal to 0, ये हमें ढूंढना है. See, if the function, if the given function, just a moment, let me my comfortable view is ruled lines, and a nice page color. Cool. If the given function is continuous at x is equal to 0, if the given function is continuous at x is equal to 0, f of x as x approaches 0 plus, I'm sorry, limit as x approaches 0 plus of f of x should be equal to limit of f of x when x approaches 0 minus should be equal to limit of x approaches 0 at f of x should be equal to each other. ये तीनों चीज एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं. सबसे पहले अच्छा, ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, दिया है कंटिन्यूस, तो k की वैल्यू क्या होगी. चलो सबसे पहले let's find out the value of the function at 0 ना. at 0 हम लोग ढूंढ लेते हैं. so limit of f of x at x is equal to 0, x approaches 0 at x is equal to 0, कैसे भी बोल सकते हो. देखो, when x is greater than equal to 0 the value of the function becomes 3, तो इसकी वैल्यू तो 3 है. ठीक है, so what should be limit of the function f of x as x approaches 0 minus, that is x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, ठीक है, और तब जब हम x को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा. हमें मिलेगा kx by mod of x, kx by mod of x, एंड ये जो kx by mod of x है should be equal to 3, should be equal to 3. why? because ये फंक्शन की वैल्यू 0 पे, और तुम 0 को अप्रोच करोगे
लेफ्ट साइड से, तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 पे एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस फंक्शन हो। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय f of x when x is smaller than 0, which is equal to kx is equal kx upon mod of x। देखो x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है और यहाँ पे तुम्हें mod of x डेफिनेशन में दिया है, yeah, we can simplify this actually। तो can we write it as k of x upon minus x is equal to 3, which is minus k is equal to 3, so k is equal to minus 3। Let's check if we can do that। तो अगर k की वैल्यू -3 होगी, then this function will be having the value of 3 as x approaches 0 from left hand side। Let's check if the answer is correct। Yes, the answer is correct। For continuity, जब हम लोग देखो 0 पे तो वैल्यू 3 आती है, ठीक है, तो डायरेक्टली वो लोग ने 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो माइनस के इज इक्वल टू 3 डाल दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, देखो यहाँ पे माइनस एक्स डाल दिया। क्यों माइनस एक्स? क्योंकि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट? तो मॉड ऑफ x, मॉड को अगर हटाएंगे तो हमें माइनस एक्स मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें माइनस के मिलेगी, ठीक है, एंड माइनस के शुड बी इक्वल टू 3, सो के इज इक्वल टू -3। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। Prove that every constant function is continuous in R। in R मतलब रियल नंबर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इन द सेट ऑफ रियल नंबर कंटिन्यूअस होगा, ये प्रूव करना है। द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन R। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन implies that f of x is equal to c where x belongs to R। मतलब x मतलब तुम्हारी डोमेन के लिए तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, तुम्हारी जो रेंज होगी वो एक कांस्टेंट नंबर होगी, ठीक है। अब ये कैसे कंटिन्यूअस हो? चलो, तो लिमिट ऑफ दिस f of x when x approaches किसको अप्रोच कराएंगे? कोई भी एक रैंडम नंबर को रियल नंबर में अप्रोच करा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू, सी तो ऑलरेडी यूज हो चुका है कांस्टेंट के लिए, एट p, ठीक है। एक पॉइंट है, एक वैल्यू है x की p जो रियल नंबर है, उस पर हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग p को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। हम p को कहीं से भी अप्रोच करें, x की वैल्यू p है और p को हम कहीं से भी अप्रोच करें, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? c। अगर इसको हम लिमिट ऑफ f of x ढूंढते हैं व्हेन x इज अप्रोचिंग p प्लस, तो भी इसकी वैल्यू c आएगी। एंड लिमिट ऑफ f of x when x टेंड्स टू p, p पे उसकी अगर फंक्शन की वैल्यू ढूंढे तो भी इसकी वैल्यू c आएगी। therefore f of x is equal to c is everywhere continuous in R, ठीक है।
एवरीवेयर कंटिन्यूस इन आर, ये प्रूव किया हमने। अच्छा, इसके बाद क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब डोमेन तुम एक्स डालोगे, रेंज भी तुम्हें एक्स मिलेगी, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब तुम कोई भी एक कंटिन्यूटी किसी भी एक पॉइंट पे डिस्कस करो, सपोज एक्स इज इक्वल टू पी पे डिस्कस करते हैं, तो एक्स की जगह पे मैं पी डालूंगा तो आंसर भी मुझे पी मिलेगा। तो यहाँ पे सेम चीज लिखनी है तुम्हें, लेकिन आंसर में सी नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? पी मिलेगा। मतलब तुम्हें लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने से भी सेम आंसर आ रहा है लिमिट में, राइट हैंड से अप्रोच करने में भी सेम आंसर आ रहा है, और उस पॉइंट पे तुम अगर लिमिट ढूंढते हो उस फंक्शन की तो भी तुम्हें सेम आंसर आ रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये मेरा तरीका था इसको लिखने का। आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि टेक्स्ट बुक ने इसको कैसे सॉल्व किया। लेट्स चेक। वो लोग ने अल्फा पे चेक किया, ठीक है, अपना तरीका बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस सी, वो लोग ने सी लेके किया है, ठीक है। सो आई थिंक माई मेथड इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम कैसे भी लिख सकते हो, जो तुम्हें मेथड सही लगता है जिस तरीके से तुम लिख सकते हो। इट वॉज अ ट्रिवियल काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। चलो नेक्स्ट क्या है, discuss the continuity of the function f of x is equal to mod of x at x is equal to 0. f of x is equal to mod of x at x is equal to 0, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है मैं जीरो पे, ठीक है, बहुत इजी है। ओके, सो f of x इज इक्वल टू mod of x, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? f of x is equal to mod of x is equal to, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ सॉरी, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स, राइट, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर स्मॉलर देन जीरो। मतलब जीरो पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। लेट अस अप्रोच जीरो फ्रॉम बोथ द साइड्स। जीरो पे डिफाइंड है ये फंक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो लिमिट, ओके, सो लिमिट of the function f of x as x tends to 0 from the left hand side, ठीक है। Now we are on the left hand side of 0, that is all the negative numbers, so this uh, value will become mod of x, so basically we'll take minus x, okay, and limit of function f of x when x tends to 0 from positive side will become x, limit of a function at the point 0 will become 0 of course, ठीक है, at the point 0 it becomes 0। तो यहाँ पे लिमिट मुझे अलग अलग मिल रही, when you are approaching 0 from left hand side, right hand side, and when you are finding the limit at 0,
आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, दैट मीन्स इसके ये कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो शायद मेरी गलती है डेफिनेटली इसमें, बट जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का, ये ग्राफ कैसा होता है? दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे जीरो और यहाँ भी जीरो ही होना चाहिए। चेक करते हैं उन्होंने आंसर कैसे लिखा है। ओके, एच मेथड यूज किया है। सो जब हम जीरो को टेंड करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, बिल्कुल सही है। इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके या फिर माइनस एक्स ही लिख दिया है, जो गलती थी, हमें एच मेथड यूज करनी थी। हमें x टेंड्स टू जीरो माइनस की जगह h टेंड्स टू जीरो और x की जगह जीरो माइनस एच लिख के सॉल्व करना था, तो हमें h मिलता, यहाँ भी h मिलता, और एट अगर जीरो मिलते तो भी हमें h मिलता। सो बेसिकली लिमिट व्हेन h टेंड्स टू जीरो ऑफ h जीरो होता है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो ऑफ h जीरो होता है, और लिमिट ऑफ तो दोनों सेम है, मतलब f कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, h मेथड हमें यूज करनी पड़ेगी। वैसे डायरेक्टली हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, लिमिट्स का थोड़ा सा हमें एप्लीकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट स्टॉप इट ओवर हियर, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड कि कंटिन्यूटी होता क्या है। अब क्वेश्चंस थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, एंड विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट पार्ट, और हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूटी पार्ट एटलीस्ट खत्म हो जाए, फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।